Hi, hello. How are you? We have started first unit from your English textbook. We have completed two lectures and today I am going to start your third lecture. Friends, in first lecture we have seen that there was a person and his name was Lencho and he was living on the top of the hill. For the top of the hill, the word crest is used. And he had a very nice field of corn and he could see from his house that nice flowers were there on the plants of the corn and he was expecting good crop this year. But yet he was waiting for the rain and that's why he was little bit worrying and he was telling his wife that we need either a rain or at least a shower. One evening, he could see some dark clouds in the sky, and he told his wife that today rain may come very heavily, I hope. His elder boys were working in the field, and the younger ones were playing. Suddenly, his wife called them for supper, and while they were taking their supper, Lencho told that it has started raining. Very nice, very good. And he was really happy because he was waiting for rain. He was very happy, but his happiness vanished in a few seconds because suddenly strong wind started to blow and the rain converted into hailstones. Hailstones जिसका मतलब मैंने आपको बताया था वो in Gujarati we call it આપણે બરફના કરા કહીએ ને which is very dangerous for the crop. For 1 hour there was a storm of hailstorm and the whole crop of corn was destroyed. Lencho was very sad and he told his family that this year we are going to be hungry. We are not getting anything to eat because the hailstorm has destroyed our corn. And that's why he decided that no one except God can help him. And he had a deep faith in God. And it is a very good quality of Lencho that to have faith in God. And so he wrote a letter to God that he wanted 100 pesos. If he didn't get the money, his family would have to starve or would have to face so many trouble. Now let's see what happens next. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. He knew that and he had faith that he had written a letter to the God and God was sure to answer his letter. And that's why the following Sunday he came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. The postman himself handed the letter to him. तो ये लेटर पोस्टमैन ने खुद दे दिया. So the postmaster himself handed किया, it means उसको hand में दिया the letter to him. While the postmaster experiencing the contentment, ये आपको MCQ के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा. What was the postmaster experiencing? Postmaster क्या experience कर रहा था? The contentment. तो साइड में उसका मीनिंग भी आपको दिया गया है. कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन. तो पोस्टमास्टर को सेटिस्फेक्शन हो रहा था, संतोष हो रहा था, आनंद हो रहा था. क्यों? उसे ऐसा लग रहा था कि he has performed a good deed. उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया. And he was he looked on from his office. ऑफिस में से वो देख रहा था पोस्टमास्टर जिसने लेंचो को पैसे कलेक्ट करके उसको भेजा था.
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने मनी को देखा और उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि उसको तो कॉन्फिडेंस था कि गॉड मेरे प्रॉब्लम का रिप्लाई देने ही वाले हैं, मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100 पैसे गॉड के पास से मिलने ही वाले हैं, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। देखिए, इतना कॉन्फिडेंस ईश्वर के ऊपर अगर हम रखते हैं तो हमें इसका श्योरली आंसर मिलेगा। तो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. मनी को देखकर लेंचो को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। Such was his confidence. उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था। But he became angry when he counted the money. फिर उसने मनी काउंट किए तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया। मनी काउंट किया तो he became very angry. Why? God could not have made mistake. भगवान ने तो मिस्टेक नहीं की होगी, भगवान ने तो उसे 100 पैसों ही भेजे होंगे। Nor could he have denied Lencho what he had requested. तो ये डबल नेगेशन का यहाँ पे यूज किया गया है। वो कहता है भगवान कभी भूल नहीं कर सकते और भगवान कभी लेंचो की जो डिमांड है, लेंचो की जो रिक्वेस्ट है, उसे मना नहीं कर सकते। ये भगवान में उसको इतनी श्रद्धा थी। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. To ask for એટલે it means किसी चीज का डिमांड करना। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately लेंचो है वो विंडो के पास गया। पोस्ट ऑफिस में विंडो होती है, अगर आप गए होते तो आपको पता होता। पेपर और इंक दो मुझे। उन दिनों में बॉल पेन जिससे आप लिखते थे वैसी बॉल पेन नहीं आती थी, लिक्विड इंक आती थी। उसमें जो पेन होती है उसमें बार बार उसको टच करना पड़ता था और इंक से वो लिखते थे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां पे एक पब्लिक राइटिंग टेबल भी रहता है पोस्ट ऑफिस में। अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ देखना मिल जाएगा कि पोस्ट ऑफिस कैसी होती है। ऐसी विंडो होती है, साइड में वो राइटिंग टेबल होता है, सब लोग वहां पे लिखते हैं। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकल गुजराती में इसे बोले तो આપણે ना कहिए करचली पड़ी जवी। उसकी ब्रो यानी आईज के ऊपर जो ब्रो होती है वो कैसी हो गई? रिंकल्ड होती है, हो गई। जैसे कि हम गुस्सा होते हैं तो हमारी आईब्रोज कैसी रिंकल्ड हो जाती है। हाँ, तो विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. उसको अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो तकलीफ होती थी, उस तकलीफ की वजह से उसके चेहरे पर जो आईब्रोज थी उसमें रिंकल हो गए। When he finished, he went to the window to buy a stamp. आपको पता है कि जब आपको कहीं पे भी लेटर लिखने होते हैं तो आपको उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाने होते हैं। तो when he finished, उसने अपना राइटिंग जब पूरा किया, he went to the window, विंडो पर गए, to buy a stamp, स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed। देखो यहाँ पे ये विंडो है, पीछे देखते हैं आप, यहाँ पे ऐसे राइटिंग टेबल आता है और वहां लेंचो ने लेटर लिखा और अब ये लेटर वो फिर से पोस्ट मास्टर को दे रहे हैं। द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट यानी मुक्का, एनवेलप को टाइट बंद करने के लिए उसके ऊपर अपने फिस्ट से उसने ब्लो किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उसने लेटर भगवान को ही लिखा था, उसको पता था पोस्ट मास्टर को, एंड पोस्ट मास्टर वॉज क्यूरियस टू नो व्हाट ही हैड रिटन इनटू द लेटर। सो व्हाट ही हैड रिटन, ये जानने के लिए पोस्ट मास्टर जल्दी से गए और ओपन किया। गॉड उसने लिखा था
of the money that I asked for यानी to demand, जिस मनी को मैंने डिमांड किया था, only 70 pesos reached to me. मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos आए हैं. अब आपको पता है कि पोस्ट मास्टर ने कैसे मनी को कलेक्ट किया था, सब अपने एम्प्लॉइज के पास से और सबके पास से बोलकर उसने मनी कलेक्ट किए थे, और इस मनी ने वो ही कुड नॉट कलेक्ट 100 पैसों. लेंचो की डिमांड 100 पैसों थी, लेकिन वो 100 पैसों कलेक्ट नहीं कर सका था पोस्ट मास्टर, इसलिए जितना भी कलेक्ट हुआ था उतना उसने भेज दिया था, और वो मनी कितने थे? 70 पैसों थे. तो लेंचो को बहुत ही गुस्सा आया कि भगवान ने कोई भूल नहीं की होगी. उसने लिखा, उसने कंप्लेन की भगवान को कि आई आस्क्ड फॉर यानी टू डिमांड, मैंने डिमांड की थी 100 पैसों की, ओनली 70 पैसों रीच्ड टू मी, मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसों आए हैं. सेंड मी द रेस्ट. द रेस्ट इट मीन्स बाकी बचे हुए पैसे मुझे जल्दी से भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच. सिंस यानी बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, मेरे पास 70 रुपीज ही पहुंचे हैं, आप मुझे बाकी के 30 पैसों जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है. आई नीड इट, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल. लेकिन मुझे मेल में, पोस्ट में मत भेजना, because the post office employees are a bunch of crooks. crooks का मीनिंग मैंने आपको लिखाया था, यानी dishonest persons, अप्रामाणिक. मुझे मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो डिसऑनेस्ट पर्सन्स है. प्लीज डोंट सेंड मी द मनी थ्रू मेल. तो कितना इनोसेंट आदमी था, ऐसा उसने लिखा था. एट द एंड ऑफ द लेटर उसने अपना नाम लिखा, लेंचो. नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? लेंचो सरप्राइज हुआ था? नो. वॉट मेड हिम एंग्री? लेंचो गुस्सा क्यों हुआ था? तो लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज ही कुडंट फाइंड द मनी ही हैड डिमांडेड. उसने तो 100 पैसों डिमांड किए थे, लेकिन उसके पास ओनली 70 पैसों मिले. वॉज लेंचो, वो हमने कर लिया. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. वॉट डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो को किस में यकीन था? Why does the postmaster send money to Lencho? He didn't want to break the faith of Lencho. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Lencho ने ये फाइंड करने की कोशिश की थी. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको पीडीएफ में भेज रही हूँ. क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक्स में से लिखने हैं और आंसर मैं भेज रही हूँ. ओके, ये आंसर्स आपको लिखने हैं. आगे का जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी. तो तब तक के लिए हम यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. आप सब अच्छे से ये सब समझना, हार्ड वर्ड्स लिखना, और जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ वो पीडीएफ आपको लिखनी है आपकी फेयर बुक में. इट इज वेरी मच कंपल्सरी. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. Goodbye. See you. Take care of yourself and your family. Bye.